Hello students, I am back again and we will continue the chapter periodic classification of elements, but today we will talk about a successful attempt by Mendeleev. So today we will study more about it, what was his principle, what were his criteria to classify the elements, because making order out of chaos means एक unsystematic चीज से हम systematic की ओर move कर रहे हैं. Till now we have learnt about Daubernier and Newland's principle, and today we will discuss about Mendeleev's periodic table. He was able to organize, classify most of the elements known at that time, mainly three elements. He was able to organize them in a table. His attempt was considered as one of the most successful attempt, first of its own kind, because what mistake Daubernier and Newlands were doing, they were considering only atomic mass. They were taking atomic mass as the criteria for organizing. And Mendeleev took this thing forward. He removed the anomalies and he also considered chemical properties, the similarity of chemical properties with the atomic mass and the physical properties. So this was his achievement because he considered chemical properties. Today, we know that our periodic table, the classification of element is based on the number of electrons. Their chemical properties are decided by electrons. But atomic mass, you already know that it is considered with protons and neutrons. It has no relationship with electrons. That's why earlier attempts were not successful. Fine, got it. But he was a bit successful in organizing the element because he considered chemical properties to some extent. Limited chemical properties को उन्होंने consider किया था. सारी chemical properties वो ले भी नहीं पाते because वो electrons और ये atomic number को criteria मान के नहीं चल रहे थे. This was the fault he was also making. बट स्टिल उन्होंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया. अभी हम आगे इस वर्कशीट में पढ़ेंगे. सो कुछ लेवल तक वो सक्सेसफुल रहे. तो थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में. पहले हमें, क्योंकि उनका इतना अच्छा एक अटेम्प्ट रहा और ये बेस बना आगे के लिए, तो एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट हिज लाइफ, हिज दिस साइंटिस्ट अ लिटिल बिट. हिज कंप्लीट नेम इज Dmitry Ivanovich Mendeleev. He was from Russia, Siberia basically, and his arrangement of element is also known as Mendeleev's periodic table. एक नाम देखो periodic table का, इससे पहले डॉबरनियर और न्यूलैंड वालों को टेबल का नाम नहीं मिला था. आज की डेट में जो periodic table है वो बेसिकली, तो इनकी वाली जो अरेंजमेंट है उसको भी टेबल बोला गया. तो ये काफी हद तक नजदीक पहुंचने के लिए थे. His periodic table proved to be unifying principle in chemistry. It was the motivation for the discovery of some new element, because हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी टेबल में बहुत सारे गैप्स भी छोड़े थे जिसमें कि उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर होंगे और वो मेरी टेबल में इस प्लेस पर फिट होंगे. और उनका वो जो प्रिडिक्शन था वो सक्सेसफुल रहा था. काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे निकले भी बाद में जिनकी डिस्कवरी हुई और वो उनकी टेबल में उन्हें जगह भी मिली. तो इट वॉज हिज अचीवमेंट. और इसके बारे में, इनकी अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे. अभी हम इनका बेस जान बेस जान लेते हैं. Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. बहुत सारे elements atomic masses के साथ ही relate करते जा रहे थे. But main credit जाता है Dmitry Ivanovich Mendeleev को. You need not to learn the complete name, need not to worry. आप only Mendeleev ही लिखेंगे तो sufficient है. In case Mendeleev से कोई question आता है तो need not to write the complete name. But at least you should know. He was the most important contributor to the early development of a periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. तो ये जो वर्ड आया ना, इसने इन्हें काफी सक्सेसफुल बना दिया. चलिए अब हम इनके क्राइटेरियाज ले लेते हैं. क्राइटेरियाज में सबसे पहले ये है कि आपको 63 एलिमेंट्स के साथ इन्होंने वर्क किया. एटॉमिक मासेस और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशनशिप सेटअप किया. केमिकल प्रॉपर्टीज में भी इन्होंने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया है, कंसंट्रेट किया है, कि कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओनली विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सपोज
अगर हम एलिमेंट को R बोलें, एक सिंबल दे दें, एक जनरल सिंबल, तो R का हाइड्रोजन के साथ और R का ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या वो R2O होगा, या वो RO होगा, या RO2 होगा, या समथिंग एल्स और किस तरीके का होगा? ऐसे RH के साथ है कि RH2 होगा या R2H होगा, ये किस तरह से होगा? अभी मैं आपको इसकी एक डिटेल इनके पीरियोडिक टेबल की पिक्चर भी दिखाऊंगी जहां ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही बनने वाले कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ उनके साथ बनने वाले कंपाउंड्स के फॉर्मूला ही कंसीडर किए इन्होंने, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हाईली रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ ही अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, भाई हाइड्रोजन के साथ बनेगा तो कंपाउंड के नेम के पीछे हाइड्राइड आएगा, ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो ऑक्साइड आएगा। इन्हें एक बेसिक प्रॉपर्टी माना अपने क्लासिफिकेशन की, ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडरेशन देना शुरू किया था इन्होंने। अभी तक इलेक्ट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी ना, सारे एटॉमिक मास, प्रोटॉन्स और इन सब पर ही कंसंट्रेट करते थे। दे डिडंट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड हैं, कोई लूज कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, शेयरिंग एंड ऑल दैट, दिस वाज मच बियॉन्ड आफ्टर द मैंडलीव हुआ है ये सब। इसलिए वहां तक जितना इनको नॉलेज थी उतनी कोशिशें इनकी काफ़ी अच्छी रहीं। फिफ्थ पॉइंट में है कि ऑन कीपिंग द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर ही ऑब्जर्व्ड, जब उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी मिलती जुलती थी उनको एक ग्रुप में रखा, तो इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई और वो ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज भी हो गए, जैसा कि न्यूलैंड और डॉबर्नियर भी कर रहे थे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ कि काफी सारे एलिमेंट्स फिट हो गए। He also observed that there occurs a periodic recurrence of elements with similar physical and chemical properties. अब ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते जा रहे हैं। तो जैसे न्यूलैंड ने कहा था ना कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो फर्स्ट वाले से मैच करेंगी, तो ऐसा ही इनको भी पैटर्न अपनी पीरियोडिक टेबल में दिखाई दिया। अब जो इनका लास्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेवंथ पॉइंट। इसमें आप ये देखिए जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये पीरियोडिक लॉ है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, 1 मार्क के अकॉर्डिंग ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, एंड आपने वर्ड टू वर्ड इसे बिल्कुल अच्छे से क्रैम करना है और एज इट इज लिखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। मींस अगर हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करें तो एक आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ये प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं। ठीक है, ही अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक पैटर्न देखने को मिलता है, ये कहता है इनका लॉ। यहाँ हम थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं, इसके लिए पहले मैं आपको एक डिटेल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी। यहाँ काफ़ी छोटी दी हुई है, ये एनलार्ज नहीं हो पा रही है, तो अनदर स्लाइड में आपको शो करूंगी। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेटेड बाय मेंडलीव? पीरियोडिक लॉ जो उन्होंने फ्रेम किया था, फॉर्मुलेट किया था, उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था कि देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपका आंसर 2 है। ठीक है, कि अगर हम उन्हें एटॉमिक मास के अरेंजमेंट में लगाएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, तो एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एक पैटर्न देखने को मिलता है, रिकरेंस होती है, वो रिपीट करते हैं अपने आप को, इफ दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? So you can write that atomic mass and relationship between the atomic masses and their physical and chemical properties. This was the main criteria. और फिर उन्होंने chemical properties में भी किसे लिया? सिर्फ हाइड्राइड्स, ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को, means compounds of the elements with oxygen and hydrogen. Now the question number 4. Why did Mendeleev concentrate on the compounds formed by elements with oxygen and hydrogen only? Because he selected hydrogen and oxygen as they were very reactive and formed compound with most of the elements. ये आपको डायरेक्ट यहाँ से फोर्थ का आंसर मिलता है। Now fifth question, fill in the blanks. Vertical columns are called, हाँ, here this line has not been given,
बट द वर्टिकल कॉलम जो आप देख रहे हैं ना, ये खड़ी हुई लाइनें जो है वर्टिकल लाइन, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। एंड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दिस फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, these are called periods. Vertical lines are called groups and horizontal lines are called periods. Now let's have a look at the detailed, the enlarged view of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table पर मूव करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमें कौन से ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके ऑक्साइड्स के फॉर्मूले हमसे प्रिडिक्ट करने को बोला जा रहा है कि पीरियोडिक टेबल में से इनके फॉर्मूलेस प्रिडिक्ट करिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और ये यहाँ देखेंगे। K मीन्स पोटेशियम, C मीन्स कार्बन, Al मीन्स एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन एंड Ba बेरियम। तो इन पांचों के हमें ऑक्साइड्स के फॉर्मूले प्रिडिक्ट करने हैं। ये आपके सामने डिटेल्ड है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ग्रुप्स हैं, तो इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स है। समटाइम्स ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रुप्स कितने थे, तो ग्रुप्स तो 8 थे और ये पीरियड्स कितने हैं, 6। पीरियड्स कितने हैं, 6। फाइन। अब यहाँ देखिए एक वर्ड दिया हुआ है R2O, यानी ऑक्साइड के साथ जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले, इन सब के जो भी फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, क्योंकि इन फर्स्ट ग्रुप वालों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं, ये इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाना शुरू किया। ठीक है, अब एक पैटर्न के बाद, ये 8 के बाद ये जो लिथियम आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज H यानी हाइड्रोजन से मैच करेंगी। फिर आगे चलते जा रहे हैं और फिर हमारे पास आ रहा है K यानी पोटेशियम, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मिलेंगी। प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आपको रिकर करते हुए नजर आएंगे जब हम उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाएंगे, यही कहा था मेंडलीव ने। अब फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी हैं इनके ऑक्साइड के फॉर्मूले होंगे R2O। अब हमें कौन सा निकालना है, K हमसे पूछा गया था, तो K का ऑक्साइड होगा K2O। क्लियर। दूसरा हमसे पूछा गया था, इफ आई एम एबल टू रिकॉल, सिलिकॉन, Si यहाँ पर मिलेगा आपको। ये कौन सा ग्रुप है, फोर्थ। और ये C भी पूछा था हमसे, तो ये कार्बन है। अब इन दोनों के ऑक्साइड का यहाँ से जनरल फॉर्मूला क्या है, RO2, यानी कि R की जगह अब आप C रख दें, CO2, और अगर हम R की जगह पे Si यानी सिलिकॉन रख देंगे तो SiO2। इनके फॉर्मूले ये होंगे। आपको ये टेबल लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी। ये टेबल इनकेस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये टेबल गिवन होगा और आपको सिर्फ यहाँ से एक प्रिडिक्शन, एक आइडिया लेना है। इसको देख कर के यहाँ पर समझने वाली बात ज्यादा है, क्रैमिंग नहीं करनी है किसी चीज की। फाइन। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया था एल्यूमिनियम, तो दिस इज हेयर, ये सिलिकॉन के बिल्कुल एडजॉइनिंग है एंड इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, थर्ड, राइट। अब इसमें क्या फॉर्मूला है ऑक्साइड का, R2O3। फाइन। तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al2O3। आपको कुछ ये डाटा वाटा कुछ लर्न नहीं करना है, कहीं आप देखें कि हमें ये टेबल लर्न करना पड़ जाएगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं करना है। फाइन। और हमसे एक और पूछा गया था बेरियम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज बेरियम। ये है आपका सेकेंड ग्रुप का। इनके जनरल फॉर्मूला है RO यानी कि BaO। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें ऑक्साइड, हाइड्राइड के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। ये चीजें, इनको देख के ही आप डिफरेंट एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। मेंडलीव ने ऑक्साइड और हाइड्राइड दिए हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा एज फार एज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज कंसर्न। सो लेट्स कम बैक टू आवर वर्कशीट। एंड मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड वन थिंग आई वांट टू रिपीट कि आप लोग जब ये बहुत सारा टेक्सचुअल मटेरियल देखते हैं ना तो एक स्ट्रेस आने लगता है कि इतना सारा लर्न करना पड़ेगा, बहुत थ्योरी है एंड ऑल दैट। तो जब भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात आएगी बेटा, ऑलवेज गो फॉर की पॉइंट्स। की पॉइंट्स बनाइए, यहाँ से वो वर्ड निकाल लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं उसे फ्रेम कर दीजिए। तो यहाँ मैं आपको सपोज करिए की पॉइंट्स बनाना सिखाती हूँ कि यहाँ इस पूरे फर्स्ट पॉइंट में मेन वर्ड है 63। मेंडलीफ ने कितने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, 63। और उन्होंने क्या एग्जामिन किया था, एटॉमिक मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फाइन। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या कंसंट्रेट, किस पर कंसंट्रेट किया, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब थर्ड पॉइंट में है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही, क्यों, तो हम एस से ही शुरू करेंगे, बिकॉज वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव, अब रिएक्टिव हैं तो बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ जाएंगे। फाइन। तो वेरी रिएक्टिव इज द की वर्ड। नाउ फोर्थ पॉइंट में आ जाएंगे आपके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले, ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं।
जिन प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं एलिमेंट्स की, उन्होंने सिर्फ कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज ली, हाइड्रोजन और ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ बनने वाले कंपाउंड्स के फॉर्मूले, जिन्हें हाइड्राइड्स और ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में आप देखेंगे कि हाँ, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और 6th में देखेंगे कि रिकरेंस हो रहा है एलिमेंट्स का विद सिमिलर एंड पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा है एलिमेंट्स का विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप और शॉर्ट मानना चाहें तो पीरियोडिक रिकरेंस, बस एलिमेंट्स अपने आप माइंड को, ब्रेन को याद आ जाएगा कि यहाँ एलिमेंट्स की बात हो रही है। और 7th वाले में ये लॉ जो है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, ये तो वर्ड टू वर्ड आपको क्रैम करना है। फाइन। तो इस तरह से आपको कीवर्ड्स ढूंढ लेने हैं। ये आ जाएगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, पीरियोडिक, और शॉर्ट कर सकते हो आप। तो जब भी किसी भी बुक से पढ़ें, हाथ में पेंसिल रखिए, अपने हाईलाइट कीजिए पॉइंट्स को, साथ में छोटा छोटा कुछ लिखना है तो लिखते जाइए, अदरवाइज हाईलाइटर या पेंसिल से मतलब कि अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या पॉइंट ढूंढा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जस्ट, और हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मूले। देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही सिलेक्ट क्यों किए, क्योंकि वेरी रिएक्टिव हैं। अब मुझे दोबारा से इसको हटाना पड़ता है, सारा चीज़ एक साथ नहीं आ पा रही। और यहाँ से था 63 एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें की पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। और आज की ये आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट. It needs a lot of hard work for us to prepare such videos. So please motivate us, subscribe my channel, like and share it. Okay, goodbye.